Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are going to derive the third equation of motion by applying the method of integration, not by using simple mathematics. So this is the third equation of motion, which is Vf squared minus Vi squared is equal to 2As. So if you see, we can write like this: dV by ds, dV by ds can be written as dV by ds multiplied by 1. ठीक है, मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है विदाउट एनी डाउट, because 1 multiplied by anything you are getting the same thing, no problem, it doesn't matter. लेकिन ये जो 1 है, इस 1 की जगह I can write dt by dt, ठीक है, without any problem. So if you put it there, so I can write dv by ds is equal to dv divided by ds, और इस 1 की जगह लिखो dt by dt, ठीक है. अब इसे अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो dv by ds इज इक्वल टू, देखिए, दिस कैन बी रिटन एज dv by dt. मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, dv की नीचे मैं dt लिख रहा हूँ, और ये जो, ठीक है, आई राइट लाइक दिस, और दिस विल बी dt डिवाइडेड बाय ds, ठीक है. हमें पता है व्हाट इज dv by dt, time rate of change of velocity stall acceleration. So this is dv by dt का मतलब है a, and you know what is ds by dt, ds by d time rate of change of displacement stall velocity. तो this is velocity, लेकिन अगर आप इसे उल्टा करें तो dt by ds could be written as 1 over v. ये वैल्यूज़ अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 में लेंगे तो देखें, दिस इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन लाइक दिस. देखें, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज dv by ds is equal to, what is dv by dt, acceleration, and what is this, this is 1 over velocity, ठीक है. और अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आई कैन राइट dv इज इक्वल टू, दिस इज a इंटू ds. अब दिस इज फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2. अब आप ऐसा करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें. वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट अंडर पर्टिकुलर लिमिट्स, और वो लिमिट्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, if the initial velocity of the body is vi and the final velocity is vf, तो जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन है, अब इसको vi से vf तक इंटीग्रेट करो, और लेट अस सपोज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर si है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट sf है, तो इसको आप इंटीग्रेट करें si से sf तक, ठीक है. सो इंटीग्रेटिंग this equation by using proper limits, so we can integrate like this from vi to vf, integrate करो, this is v dv is equal to, इसे इंटीग्रेट करो si से लेकर sf तक, and this is ads. और हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में, कि these equations are basically for the motion of the body is moving with constant acceleration. इसमें acceleration constant है, तो इस acceleration को बाहर ले आओ, ठीक है, और फिर इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, like this. I'll write like this, from vi to vf, and this is v dv is equal to, इस acceleration को बाहर ले को, and this is from si to sf, and this is ds. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को का इंटीग्रेशन ले लें तो दिस इज v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड द लिमिट्स फ्रॉम vi to vf, एंड दिस इज a, और ds का इंटीग्रल ऐसे
दिस इज SI to SF. ये लिमिट्स अगर आप पुट करें तो आई कैन राइट दिस इज VF स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई 2 माइनस VI स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, और अगर आप इधर पुट करें A, दिस इज SF minus SI. What is SF minus SI? It is the distance covered, doesn't matter. So you can write like, देखिए this is a half common ले लो, so VF squared minus VI squared, ठीक है, और ये है AS, ये टू अगर इस साइड पे आ जाए तो VF squared minus VI squared is equal to 2AS. This is the third equation of motion. Let me repeat. देखें this very simple, very easy. देखें this very easy. मैंने क्या किया, मैंने इधर लिखा dv by ds. This could be written as dv by ds multiplied by 1. आप किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू द सेम थिंग. लेकिन इस 1 की जगह मैंने dt by dt लिखा, तो देखिए दिस बिकम्स dv by ds इज इक्वल टू dv by ds, और 1 की जगह लिखो dt by dt. अब इसे रीअरेंज करो, ये dt dv के नीचे लिखो, ठीक है, और ये ds इधर ले, और देखें दिस इज ये ds इधर और dt, यानी 8 dt ऊपर हो जाएगा 8 नीचे हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेलरेशन. dv by dt का मतलब है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज एक्सेलरेशन, और हमें पता है वेलोसिटी बराबर है डीस बाई डी टी, लेकिन इधर डी टी बाई डी है तो उल्टा करो, तो दिस इज़ 1/v. ये दोनों वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो वी आर गेटिंग dv बाई डी एस इज इक्वल टू a इंटू 1/v, और रीअरेंज करें वी dv इज इक्वल टू a ds, और फिर इसको इंटीग्रेट करें. For example, the initial velocity of the body is vi, the final velocity is vf. Similarly, the initial displacement or distance is si, the final is sf. तो लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, वी आई से वी एफ तक इंटीग्रेट करो, और राइट हैंड साइड को एस आई से एस एफ तक इंटीग्रेट करो, सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो इफ़ यू सी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, देखें आप इसे इंटीग्रेट करें तो वी डी वी का इंटीग्रल क्या है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फ्राम वी आई टू वी एफ, और इसी तरह डी का इंटीग्रल क्या है, एस फ्राम एस आई टू एस एफ. पुट इन द लिमिट्स, तो वी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए अपनी जगह पर लेकें, और ये एस एफ माइनस एस आई आ जाएगा, वेयर एस एफ माइनस एस आई का मतलब है यानी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्टेंस, it doesn't matter, so put in it there. So half common ले ले, vf squared minus vi squared is equal to as, और ये टू अगर इस साइड पे आ जाए तो you are getting the third equation of motion. Dear students, if you have got any problem in derivation, तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं. You can do even a simple message. Okay, you can call me anytime, you can call me, you can ask. और इसके जो नोट्स वगैरह है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, लेकिन आप ट्राई करें टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व. इस पर ज़रा प्रैक्टिस करें, रिटन प्रैक्टिस बार बार करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है. और इंशाल्लाह इसके बाद देन आई विल अपलोड द अदर लेक्चर्स. थैंक यू वेरी मच.